آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں. خدا کے زندہ کلام میں شریمتی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے خدا کے زندہ کلام میں سے اس کی 19ویں بلکہ 20ویں آیت تک بلکہ 21ویں آیت تک ہم پڑھیں. میری آپ کے بھائی سے ریکویسٹ ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 13 سے 21ویں آیت تک. جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے. اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا. اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے, لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں. یسوع نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں, تم ہی ان کو کھانے کو دو. انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں. اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لے آئے اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا. پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے لوگوں کو, اور سب کھا کر سیر ہو گئے. اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھا لی اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. سارے کہیں زور سے آمین, آمین. سارے خوشی سے کہیں آمین, آمین. یہ واقعہ جو بائبل مقدس میں سے ہم نے پڑھا ہے آپ سبوں نے سن رکھا ہے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا. یہ بڑا فیمس واقعہ ہے کہ خدا یسوع مسیح جب بیابان میں منادی کر رہے تھے, ویران جگہ پر منادی کر رہے تھے, وہاں کچھ بھی نہیں تھا, تو شام ہو گئی منادی کرتے کرتے اور شاگردوں نے کہا کہ انہیں ساتھ والے گاؤں میں, قریب والے گاؤں میں بھیج دے کیونکہ جگہ یہاں ویران ہے, یہاں کچھ کھانے کو نہیں اور وقت کافی گزر گیا ہے, انہیں بھوک لگی ہوگی تاکہ یہ جا کر اپنے لیے کھانا مول لے لیں اور کھا لیں. لکھا ہے اس سے پہلے اگر ہم اس پر غور کریں تو جو آیت ہم نے 13ویں پڑھی ہے اس میں لکھا ہے جب یسوع نے سنا. اب سنا کیا, اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یسوع نے سنا کیا. سنا یہ کہ یوحنا ازدباغی کا سر قلم کر دیا گیا. یوحنا ازدباغی کا سر قلم کر دیا گیا, مین کہ اسے قتل کر دیا گیا. یوحنا ازدباغی کو جانتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے یوحنا ازدباغی؟ مطلب یوحنا بپتسمہ دینے والا جس نے بپتسمہ دیا تھا. تو جب اس کا سر قلم کر دیا گیا, آگے اگر اس کی 10ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے اور آدمی بھیج کر قید خانہ میں یوحنا کا سر کٹوا دیا اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئے اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا. یہ یوحنا ازدباغی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں یہ آخری نبی ہے. ملاکی سے لے کر متی رسول تک 400 سال کا عرصہ کوئی نبی, کوئی پیغمبر, کوئی رسول نہیں آیا. یہ جگہ ویران اور سنسان, یہ زمین ویران اور سنسان, لیکن یوحنا ازدباغی آ کر یسوع مسیح کی منادی کرتا ہے, توبہ کی منادی کرتا ہے کہ راستوں کو ہموار کرو, سیدھا کرو, کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مقدس ہے, جو معتبر ہے, جو پاک ہے, جو رحیم ہے, جو رحم کرنے کے لیے, جو اپنی بادشاہی تمہارے درمیان لے کر آ رہا ہے. میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں, جس کی جوتی کا تسمہ بھی میں کھولنے کے لائق نہیں. اور نبی جو جب اپنی جو جن کے منہ میں خدا کا کلام ہوتا ہے وہ سچائی کو بیان کرنے سے کبھی بھی کتراتے نہیں ہیں, بھلے ان کی گردنیں کٹ جائیں, بھلے انہیں جان کے نذرانے دینے پڑیں, لیکن وہ سچائی پر ڈٹے رہتے ہیں اور سچائی کو بیان کرتے رہتے ہیں.
यूहन्ना अज़दबागी ने भी कुछ ऐसा ही किया। ये अगर वाक़या पीछे पढ़े तो ये जो उसकी बेटी थी उसने नाच कर यूहन्ना अज़दबागी का सर थाल में मंगवा लिया था, और वो बादशाह था हेरोदिस जिसने हुक्म दिया कि उसका सर काट दिया जाए। ये सारा वाक़या पढ़ लीजिए, इसमें हम जाएंगे तो आगे वाली बातें जिसमें माना चाहते हैं देर हो जाएगी। मोटी मोटी समरी मैंने आपको बता दी। जब ये सब वाक़या हुआ तो यीशु ने जब ये सुना, उसे ये खबर पहुंची, तो लिखा है जब यीशु ने ये सुना वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर क्या आया जी? तरस आया। यीशु हमेशा तरस से भर जाता। जब भी किसी बीमार को देखता, जब भी किसी परेशान को देखता, जब भी गुनहगारों को देखता, तो वो तरस से भर जाता। ये खुदा यीशु मसीह की खूबी है जी, और ये खूबी मैं चाहता हूँ कि खादमों के अंदर भी होनी चाहिए। सानू तरस आंदा ही नहीं, हमें तरस आता ही नहीं है, लेकिन यीशु को देखें जिसकी हम मनादी करते हैं, जिसको हम प्रीच करते हैं, जो हमारा आका है, जो हमारा खालिक है, जो मालिक है। जब उसको हम फॉलो करते हैं, जब हम उसकी मनादी करते हैं, तो उसकी मनादी हमारे अंदर से नजर आनी चाहिए। हम उसकी मानद होने चाहिए, हम उस जैसे काम, हमें उस जैसे काम करने चाहिए। इसलिए लिखा है उन्हें उन पर क्या है, उस भीड़ पर क्या है जी? तरस आया, और उसने उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को क्या कर दिया? अच्छा कर दिया। और उनके बीमारों को क्या कर दिया? अच्छा कर दिया। जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद आगे वाली बात जिस पर हम सीखेंगे, और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, शागिर्द उसके पास आकर क्या कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा और कुछ भी नहीं। अब 2-3 बातें हम इसमें सीखते हैं कि शागिर्द कहते हैं कि हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं यूं समझता हूं कि ये भूल गए कि हमारा आका खुदाम यीशु मसीह जो आसमान से मन को बरसा सकता है, जो नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल सकता है, जो इन 5000 लोगों को खाना खिला सकता है, वो ये भूल गए कि वो कादर मोतले खुदा हमारे साथ है। आमीन। 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन यीशु को भूल गए हैं। यीशु के वो मोजज़ात कि वो बीमारों को अच्छा करता है, वो आसमान से मन बरसाने वाला, वो जो कुछ कहता है वो हो जाता है, ये भूल गए कि वो हमारे साथ है। ये वो भूल गए। लिखा है यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम इनको खाने को दो। उन्होंने कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा और कुछ भी नहीं। 2 मछली और 5 रोटी और 2 मछलियों के सिवा, लफ्ज लिखा कहते सिवा और कुछ भी नहीं, लेकिन यीशु को वो भूल गए कि यीशु भी हमारे साथ है। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ, जो काम हमारा है। यीशु ने कहा, वो तो करो ना, अगर 5 रोटियां ने 2 मछलियां हैं नहीं, वो मेरे पास ले आओ, वो काम तो करो जो कर सकते हो। जो काम हमारा है वो हमने ही करना है, और जो काम खुदा का है वो खुदा जरूर करेगा। ठीक है, वो मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को क्या किया जी? घास पर बैठने का हुक्म दिया। वो मेरे पास ले आओ। वो रोटियां उन्होंने उसको और मछलियां उनको खुदा यीशु मसीह के हाथों में दे दी। इसमें 2-3 बातें हम सीखते हैं कि जो कुछ हमारे पास है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, रुपया पैसा है, जो कुछ भी हमारे पास है, खुशी से हम खुदा के लिए उसको क्या करें? खर्च करें, लगाएं। तो जो कोई खुशी से, लिखा है कलाम ये कहता है, खुदा खुशी से देने वालों को क्या रखता है? अजीज रखता है। खुशी से जब हम खुदा के हुजूर देते हैं तो फिर हम उसमें मल्टीप्लाई देखते हैं, उसमें बढ़ोतरी देखते हैं, फिर हम उसको बढ़ता हुआ देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अजीब काम हो जो हमारी सोच से बाहर है, तो फिर हमें खुदा यीशु मसीह
वो अपने साथ रखना है और सारी चीजें उसके सुपुर्द करनी है, इवन कि अपने आप को भी उसके हाथों में दे देना है। लिखा है, उसने कहा यहाँ मेरे पास ले, और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर क्या दी जी? बरकत दी, और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को। एक सिलसिला, एक तरतीब है। मैं हमेशा कहा करता हूँ हमारा खुदा सिस्टम का खुदा है, तरतीब का खुदा है। जब अपना यहाँ चर्च में खाना खाते हैं तो एक शीट बिछाते हैं और एक लाइन में बैठते हैं, तो इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने भी कतारों में कहा कि घास पर बैठ जाएं। एक तरतीब है। हमारा खुदा सिस्टम का खुदा, तरतीब का खुदा है। हर एक चीज़ वो सिस्टम से करता है। तो उन्हें घास पर बैठने का क्या किया जी? हुक्म दिया कि घास पर बैठ जाओ। इस तरह जब भी हम अपने चर्च में भी हैं, कहीं भी खाना खाते हैं तो एक तरतीब है, उसमें हम बैठकर खाना खाते हैं। लिखा है 5 रोटियां 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर क्या हो गए जी? सब खाकर क्या हो गए? कितनी रोटियां थी और मछलियां? और कितने लोग लिखे हैं? 5000 खाली मर्दों का जिक्र है। 5000। अगर हम इसको अज्यूम करते हैं, अगर हम इसको अज्यूम करते हैं कि 5000 मर्द हैं, तो 5000 औरतें भी हो सकती हैं, 5000 बच्चे भी हो सकते हैं। एज्यूम करते हैं, एस्टिमेटेड फिगर, ये लिखा नहीं है, मैं एक एस्टिमेटेड फिगर दे रहा हूं। कम से कम 15,000 लोग हो सकते हैं, 14-15,000 तो लोग हो सकते हैं। अब 5 कितनी थी जी? 5 और 2 कितने लोगों ने खाई? 15,000 लोग। ऐसे ही हम हमारे आगे जब खाना रखा जाए तो हम समझते हैं पत्नी आगे पे आई, ये दोबारा लबड़े नहीं। यस, मैं बता रहा हूं, मैं ईमान पे जब प्रीच करता हूं तो मैं ईमान की बात यूं करता हूं कि अच्छे मैंने लोगों को, खादमों को, ईमानदारों को देखा है कि हम ईमान पर बड़ा प्रीच करते हैं, ऊपर हम बड़ा अच्छा मैसेज लिख कर लाते हैं, बड़ा अच्छी उसकी तफसीर कर रहे होते हैं कि ईमान ईमान ईमान, और एक बिरयानी की प्लेट पे हमारा ईमान मैं देखता हूं कितना हो। यस, एक बिरयानी की प्लेट पे ईमान खत्म हो जाता है कि शायद बोटियां खत्म ना हो जाए, शायद चावल खत्म ना हो जाए, शायद सालन खत्म ना हो। ऐसा नहीं। इसके लिए दाऊद नबी कहता है, जिसे ये मुकाशफा मिल जाता है, वो ये कहता है कि जो मेरा हिस्सा है उसका कौन रखवाला है? अरे खाने का हो, पीने का हो, जमीन का हो, रुपया पैसा हो, जो कुछ मेरे हिस्सा है उसे कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता है। ये तकाद होना चाहिए, ये फेथ होना चाहिए, ये ईमान होना चाहिए। मैं यूं खाता हूं, जब मैं खाना खाता हूं तो मेरी आदत जो है, मैं जितना जरूरत थोड़ा थोड़ा लेना, बार बार ले लेना, लेकिन लेना थोड़ा थोड़ा, फिर ले लेता हूँ, फिर ले लेता हूँ। अच्छा लगता है मुझे, तो बार बार डूंगे जो बिच पाना थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। एक ही दफा पाला ना तो फायदा नहीं है ना। तो मेरी आदत है, मैं आपको जो कुछ मैं खुद करता हूँ वो बताऊँ। मैं उसको थोड़ा सा लेता हूँ, फिर वो खत्म होता है, फिर और डाल लेता हूँ, फिर खत्म होता है, भले 10 दफा डालूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ला के खाता रहता हूँ। इसी तरह ये सिस्टम हमें, बाइबल मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि हमारा कलाम हमारी तरबियत करता है, हमें सिखाता है। पुराने अहदनाम में जाके पढ़े तो यहां तक बनी कौम इस्राएल को तरतीब दी गई, इस तरह समझाया गया कि आपने फुजला मीन के आपने पॉटी कैसे करनी है। खुदा हर एक चीज समझाता है, हर एक चीज की कलाम हमें तरबियत देता है, हमें सिखाता है। अगर हम कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते, अगर हम सिस्टम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते, अगर हमारे अंदर कोई कानून नहीं, प्रिंसिपल नहीं, तो फिर जस्ट लाइक हम क्या नहीं मानते हैं, एक जानवर है, जानवर भी तो ऐसा ही करता है। तो हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। तो जिस तरह खुदा कहता है उस तरह हमें करना चाहिए, उसकी तरतीब हमारे अंदर से नजर आनी चाहिए। हमेशा कहता हूं कि अच्छा सोना, फिर अच्छा उठना, अच्छा दुआ का टाइम रखना, इबादत का टाइम रखना, इबादत के लिए टाइम निकालना, दुआ के लिए टाइम निकालना। जिस शख्स के अंदर तरतीब है, सिस्टम है, जिंदगी गुजारनी कैसे है, तो इट मीन हम खुदा के करीब हैं। लास्ट में ये सिखा रहा था कि अगर हम सिस्टम में रहना चाहते हैं, खुदा के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर हमें दुआ की जरूरत है। फिर हमें किसकी जरूरत है जी? दुआ में जब हम रहेंगे तो खुदा की हजूरी मिलेगी, खुदा की हजूरी के बाइस हम फिर खुदा के मुताबिक जिंदगी बसर करने की
कोशिश करेंगे। सो लिखा है 5 रोटियां और 2 मछलियां, तो खुदा ने लिया और बरकत दी और तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को सब खाकर कितने क्या हो गए जी, शेर हो गए। आगे वाली बात, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से, टुकड़े कितने बचे थे टुकड़े, कितने, शागिर्द कितने थे, शागिर्द कितने थे और टोकरे कितने थे। अब खुदा यीशु मसीह यहाँ शागिर्दों को ये समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा इत्तेकाद कहाँ था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जो बचे हुए टुकड़े हैं उनसे भी अपना अपना हिस्सा ले लो, मैं ऐसी बरकत दूंगा जहाँ खुदा यीशु मसीह होता है वहाँ किसी चीज की कमी भी। हालेलुया, आमीन, सारे कहे आमीन। तो इसलिए यीशु ने क्या, 12 टोकरे भी, अपना अपना टोकरा भी भर लो, अपना अपना टोकरा भी भर लो। 12 टोकरे, 12 शागिर्द, 5 मछलियां, 5 रोटियां और 2 मछलियों पर ऐसी खुदा ने बरकत दी कि 15,000 लोगों ने खाना खाया और बचे हुए टोकरे 12 भी उठाए गए। टुकड़े तो और भी बहुत बचे होंगे, क्योंकि खुदा जब बरकत देता है तो फिर वो ऐसी लबरेज होती है कि अनकाउंटेबल, उसमें हम उसे गिन ही नहीं सकते। ऐसी बरकतों के बहुत से रेफरेंस हैं जिनको खुदा ने बरकत दी, वो अनलिमिटेड बरकत होती है। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये हम बात सीखते हैं कि जो हमारा हिस्सा है खुदा वो हमें ज़रूर देगा, उसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5,000 मर्द के करीब थे। कितने थे जी, 5,000 मर्द के करीब थे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, कलाम हमें ये सिखाता है, कलाम हमारी तरबियत करता है कि जो कुछ हमारे पास है इसके अंदर 3-4 बातें बड़ी अहम हैं। कि यीशु ने उनसे पूछा कि इनको तुम ही खाने को दो। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो 5 रोटियां थे, 2 मछलियों के सिवा कुछ भी नहीं। हम कोई भी काम करें, बिजनेस करें, जॉब करें, जो कुछ भी करें, घर में खाना खाएं, दुआ करके खाएं और ये ईमान रखें कि खुदा यीशु मसीह इस पर बरकत देगा। खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है, वो सारी चीज़ों को पूरा करेगा। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हम सीखते हैं कि चीज़ें वेस्ट नहीं होनी चाहिए। चीज़ें वेस्ट, जब प्याला लबरेज हो जाए, बरकतें आपके पास बहुत हो जाए, तो मैं यूं कहता हूँ कि उन बरकतों से हम दूसरों तक लेकर जाएं, दूसरे उससे सेर हों, दूसरे उससे निजात को पाएं, दूसरे उसको पेट को भरें, दूसरों को लेसन मिले कि खुदा हमारा कैसा मेहरबान खुदा है। ये ईमानदारों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा खुदा के खादमों को करना चाहिए कि जो कुछ उनके पास है वो ईमानदारी और वफादारी से लोगों को बांटने में देर ना करें और दिल को बड़ा करके लोगों में बांटे। कलाम हो या जो कुछ भी हो, वफादारी और दयानतदारी से उन पर बांटे। और जो कोई भी वफादारी और दयानतदारी से काम को करता है खुदा उसे क्या देता है जी। एक रेफरेंस और हम पढ़ेंगे, इसी मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 26वां बाब और 6ठी आयत। आखिर भाई इसी मत्ती रसूल की मार्फत की लिखी गई अंजील है, उसका 26वां बाब है और उसकी 6ठी आयत को जरा पढ़िए। और जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई। जब वो खाना खाने बैठा और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे ये किस लिए जाया किया गया। ये तो बड़े दामों को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा इस औरत को क्यों दिक करते हो। इसने क्या मेरे साथ किया जी, इसने तो मेरे साथ क्या किया, भलाई की है। क्योंकि गरीब और गुरबा हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा न रहूंगा।
और उसने और इसने मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूं, खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं जी, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाए, ये भी जो इसने किया इसको क्या रखा जाए जी, याद रखा जाए। अब पीछे जो वाक्य हमने पढ़ा है, ये 5 रोटियां और 2 मछलियां, आपको पता है किसके पास थी? नसीब भाई किसके पास थी? ये एक बच्चा था, उसके पास ये 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। उस बच्चे का नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन ये वाक्य जरूर लिखा गया है कि उस बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। जब खुदावंद यीशु मसीह को उसकी जरूरत पड़ी तो उस बच्चे के अंदर ईमान देखें, उस बच्चे का मसीह से मोहब्बत की इंतहा देखें कि उसने खुदावंद यीशु को वो 5 रोटियां और 2 मछलियां जो अपने लिए लाया था उसने पेश कर दी। हमें उस बच्चे ने लिखा लफ्ज बच्चा गया है, वो बच्चे का नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन उस बच्चे की मोहब्बत को हम ये समझते हैं, जानते हैं कि इस किताब में उसका नाम दर्ज कर दिया गया है। वजह क्या थी कि जो कुछ उसके पास था उसने खुदा यीशु मसीह को खुशी से दे दिया। कैसे दिया जी? खुशी से दे दिया। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाह, सुने खुदा के कलाम को सुने। इस तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उस बच्चे ने जो कुछ उसके पास था वो अपने लिए खाने के लिए रोटियां लेकर आया था, लेकिन खुदा यीशु मसीह को जब जरूरत पड़ी तो उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां खुदा उनको दे दी। तो इसलिए इसी तरह इस औरत का भी हम जिक्र पढ़ते हैं, लिखा है उसके पास क्या था जी? कीमती इत्र था। कौन सा इत्र था? कीमती, महंगा। शागिर्द ये देखकर परेशान हो गए कि क्यों ये जाया कर दिया गया, ये तो इतने गरीबों की मदद की जा सकती थी, इससे इतने लोगों की इस पे हेल्प हो सकती थी, लेकिन क्यों जाया किया गया? यीशु ने कहा ये जाया नहीं किया गया, बल्कि इसने मुझे खुदावंद जानते हुए, मालिक जानते हुए, खालिक जानते हुए, इसने तो मेरे लिए भलाई का काम किया है, मेरे लिए सारी चीजें कुर्बान कर दी हैं। उसने मुझसे ज्यादा कोई भी चीज को अहमियत नहीं दी, किसी भी चीज को ज्यादा कीमती नहीं समझा। उसने ये समझा कि सबसे ज्यादा कीमती खुदावंद है, इसलिए उसने सारी कीमती चीजों को मुझ पर क्या कर दिया? आखिर भाई निछावर कर दिया। आमीन। इसलिए उसके बारे में लिखा गया, उस औरत के लिए कलाम में हम पढ़ रहे हैं, लिखा मैं तुमसे सच कहता हूं। खुदा यीशु मसीह की क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में, कहां तक जी? तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। आमीन। देखें, जो यीशु के साथ भलाई करता है, जो यीशु को अपना खुदावंद मान लेता है, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, सब कुछ उसको अपना मान लेता है, सब कुछ उस पर अपना निछावर कर देता है, तो उसके लिए लिखा गया तमाम दुनिया में जहां कहीं खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, इसे भी क्या रखा जाएगा जी? याद रखा जाएगा। इस औरत का भी जिक्र हम पढ़ रहे हैं और उस बच्चे का जिक्र भी हम पढ़ रहे हैं। इसलिए जोर मारकर, जोर ओवर लोग बादशाही को क्या करते हैं? छीन लेते हैं। अरे बादशाही में चले जाते हैं, लेकिन जब सुस्त होंगे ने वो 5 कुआरियों और 10 कुआरियों का वाक्य सुना है अक्सर, वो 5 पीछे रह गई हैं, तो 5 जड़ियां जोर ओवर सन वो बादशाही में दाखिल हो गए। इसलिए इस औरत ने जोर मारकर सब कुछ अपना निछावर कर दिया कि यीशु ही सब कुछ है, वही मेरा खालिक है, वही मेरा मालिक है। अरे जब खालिक है, मालिक है, तो फिर उससे ज्यादा कीमती चीज हो सकती है? बात सिर्फ समझने की है। बच्चे की बात भी ये समझ में आ गई थी कि ये 5 रोटियां और ये 2 मछलियां मेरे यीशु के आगे कुछ भी, उन्हें अपनी भुख की परवाह नहीं की थी। हम कहते हैं सानू भुख लगे असी की करांगे, असी कितों रोटी खाएंगे। मैं निरम समझ आ रही ना, हम क्या, हमारा क्या बनेगा? ठीक है साहब। लेकिन इस बच्चे ने इस चीज की परवाह नहीं की,
इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं कि मेरे लिए रोटी क्या होगी, मुझे भी भूख लगेगी। उसने कहा मेरे खुदावंद को इन 5 रोटियों और 2 मछलियों की जरूरत है। उसने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हारे पास है। उस बच्चे ने कहा ये 5 रोटियां और 2 मछलियां मेरे पास हैं, खुदावंद ये हाजिर है। तो देखिए आज उस बच्चे का जिक्र हम कलाम के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे नाम किताब मुकद्दस में लिखे जाएं, हम खुदा की बादशाही में हमेशा रहें, ना खत्म होने वाली बादशाहत में हमेशा रहें, तो फिर यीशु से बढ़कर किसी से प्यार ना करें। सब कुछ यीशु है, सारी चीजें अगर जरूरत पड़े तो उस पर निछावर करने की, तो उसके लिए भी हम हमेशा हाजिर रहें। इवन कि अपनी जान का नजराना भी देना पड़े तो तैयार रहें। आमीन। क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है जो कोई अपनी जान बचाना चाहेगा उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान गवाएगा वो उसे महफूज रखेगा, बचा लेगा। आमीन। तो इसलिए जान का नजराना भी देना पड़े। कभी ऐसा वक्त भी आए तो शागिर्दों ने ऐसा ही किया, खुदा से प्यार करने वालों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने जान की परवाह भी ना की, खुदा उनके लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। इस औरत का वाक्या भी हम पढ़ते हैं कि जो कुछ उसके पास कीमती था, इतर जो बहुत कीमत का था, वो उसने यीशु पर डाल दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इस इतर से, इस कीमती इतर से ज्यादा कीमती तो मेरा यीशु है, क्योंकि उसकी तो कोई कीमत है ही नहीं है। सिर्फ बात अंडरस्टैंडिंग की है, बात सिर्फ समझने की है कि यीशु है कौन, उसने हमारे लिए किया क्या है। बात सिर्फ समझ, जिसकी ये समझ में आ जाती है बात, फिर वो खुदा के बगैर रह सकता नहीं, फिर वो यीशु के बगैर रह सकता नहीं है। इसलिए इस औरत के पास जो कुछ था इसने यीशु पर निछावर कर दिया। शागिर्द जो थे उनको फिक्र पड़ गई कि ये तो बहुत से दामों में बिककर गरीबों की मदद की जा सकती थी। यीशु ने कहा गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे, सोनिया हमेशा तुम्हारे करते रहो, खिदमत तो ना दो ना, मैंने को मना तो नहीं किया। यीशु यही कह रहे मैं मना नहीं कर रहा, गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इस दुनिया में आप देखें सिग्नल देने खलोते मन लगे कितने खलोते ने दे दे के तुम आते कभी किन्नू किन्नू दैया सोनिया आते हो कि नहीं आते। कहना गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, अगर दिल है तो दो उनको भी, लेकिन यीशु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यीशु से बढ़कर कोई चीज भी नहीं है, सब कुछ यीशु के लिए है, क्योंकि यीशु ने हमें जिंदगी दी है और हमेशा की जिंदगी दी है। कोई खालिक है, कोई मालिक है, उससे बढ़कर कोई भी चीज और हो नहीं सकती है। ये बात समझने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह गरीब गुरबा को देने से मना नहीं कर रहे, बल्कि 3 तरह के हदिये होते हैं। हमें खैरात करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए जी? खैरात करनी चाहिए। हमारे इस ईमानदारों के अंदर हम खैरात नहीं करते, बल्कि खैरात करनी चाहिए। खैरात मीन के गरीबों को देना चाहिए, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कलाम हमें ये तालीम देता है। फिर खुदा का जो है, खुदा यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो, और जो खुदा का है ना हम खुदा का खुदा को देते हैं, ना हम खैरात करते हैं गरीबों को। जो गरीबों का है उन्हें देने असी सारा कुछ खा भी जाने हैं, असी सारा कुछ आप ही इसीलिए जहां है वहां तक रहते हैं। अगर अनलिमिटेड होना चाहते हैं, अगर खुदा के जलाल को देखना चाहते हैं, तो जिस तरह इस बच्चे ने किया, जिस तरह इस औरत ने किया, आज उनका जिक्र हम किताब मुकद्दस में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी यीशु के लिए, खुदा के कलाम के लिए, खुशखबरी के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। जो कुछ उनके पास था उन्होंने खुदा की बादशाहत की वुसअत के लिए खर्च किया। उनका नाम किताब मुकद्दस में लिखा जाता है। आमीन। तो जिन्होंने प्यार किया, एक दौलतमंद यीशु के पास आया, बड़ा पैसा उसके पास था, कहा कि खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का, तो यीशु ने उसे कहा क्या कर, हुक्मों पर, नसीम भाई हुक्मों पर
आगे से कहता है मैं तो बचपन से हुक्मों पर अमल कर रहा हूं। अब यीशु से पैसों तकरार कर रहा है, जो खालिक है, जो मालिक है, जो आपके अंदर की बातों को जानता है, जो आपकी सोच को जानता है, जो आपकी नियत को जानता है, उसको कह रहा है कि मैं तो बचपन से हुक्मों पर अमल कर रहा हूं। यीशु ने कहा तुझ में एक बात की, तुझ में एक बात की, कहना वो कौन सी बात है डीकन साहब? कहना वो कौन सी बात है जिसकी मेरे अंदर कमी है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह अंदर के हाल जानता है। यीशु ने कहा अगर तू हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता है, अगर तू हमेशा की बादशाहत में रहना चाहता है, अगर हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है, तो जो कुछ तेरे पास है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। लौट कर वापस नहीं आया, लौटकर मैं सदीका लौटकर वापस, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। कहता है इतनी दौलत में मुश्किल ना कमाइए, पता नहीं किन्नू किन्नू पागल बनाया, बेवकूफ बनाया, कहीं फ्रॉड कीते ने, इतना कुछ जमा किया है। कहना देख के गरीबां को आत्मा आसमान पे खजाना मिले। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जिसे यीशु की समझ आ जाए, जिस पर ये मुकाशवा खुल जाए, इस बच्चे पर मुकाशवा ये खुला, इस औरत पर मुकाशवा खुला कि यीशु से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है, उसने मुझे हमेशा की जिंदगी अता की है, ये खालिक है, मालिक है, इसके बगैर और कुछ भी नहीं है। तो वो खुदा यीशु मसीह पर सारी चीजों को क्या करते हैं जी? निछावर करते हैं। इस दौलतमंद ने निछावर नहीं किया। कलाम कहता है लौट कर वापस ही नहीं आया, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। फिर एक और वाकया अगर हम पढ़ें तो अमीर शख्स वाला और गरीब लाजर वाला, जानते? तो लाजर जो गरीब था वो उस अमीर के कहां डाला गया? कहां डाला गया? पेंसिलिया कितने डाला गया? दरवाजे पर, कि शायद इसकी केयर कर ले, शायद इसकी देखभाल कर ले, शायद कुछ पैसे में से इस पर खर्च कर दे। लेकिन पैसा बड़ा है ते दिल निक्का सी। मेरे साथ है, पैसा तो बड़ा सी लेकिन दिल अगर साहब छोटा सी, निक्का में। दिल किन्ने ने पहचाना? एक और एक दिल छोटा सी, दिल उसका दो दिला था वो कि अगर ये मैंने खर्च कर दिया तो मेरे पैसे में से कुछ चला जाएगा। लेकिन कलाम कहता है जब दोनों वो फौत हुए, मर गए, तो लाजर जो है वो अब्राहम की गोद में और ये वाला जहन्नम की आग में। फिर उसे बड़ी चीखें मारता है, कहता है अब्राहम मनु मौके तो कल किसे जाके मेरे बाकी खानदानों को जाके बता दे कि तौबा कर लो, इतने बड़ा बुरा हाल है। तो अब्राहम ने कहा अंबिया और मेरे खादम हैं उनकी सुने। कहता है वो इतने सख्त हो चुके हैं। अब्राहम ने आगे उसको कहा कि वो इतने सख्त हो चुके हैं कि मुर्दों में से भी कोई जी उठेगा तो वो उसकी भी नहीं सुनेगा। मुर्दों में से कौन जी उठा है? अरे जितने लोग मर गए उनकी कब्रें भरी पड़ी हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह की कब्र खाली है। उसने कहा अगर कोई मुर्दों में से जी उठे तो वो उसकी भी नहीं सुनेंगे। यीशु को आज भी लोग रद्द करते हैं, आज भी ईमान नहीं लाते, आज भी यीशु की बातें नहीं सुनते, क्योंकि सख्त हो चुके हैं। यही तो अब्राहम उस अमीर शख्स से कह रहा है, अरे वहां नबी हैं, वहां पैगंबर हैं, रसूल हैं, खादम हैं, उनकी क्यों नहीं सुनते? उनकी सुने तो वो निजात पा जाएंगे, हमेशा की आग से बच जाएंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस औरत की तरह, उस बच्चे की तरह हमें यीशु की पहचान होनी चाहिए, हमें खुदा शनासी होनी चाहिए कि खुदा से आगे कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो सब कुछ किसका है? खुदा ही का। भाई परवेज, वो सब कुछ किसका है? खुदा ही का है। तो हमें खुदा से इस तरह से प्यार करना चाहिए, हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि खुदा हम हाजिर हैं, हम तेरी हजूरी के लिए, हम तेरे लिए काम करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। हमें हर वक्त क्या रहना चाहिए जी? तैयार रहना चाहिए। जो कुछ अगर कुछ ये बड़ी, मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है
اگر اس عورت نے یہ کیا اس بچے نے تو میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں خدا کے لیے کچھ کرنا پڑ جائے اس کی بات صحیح تو یہ سمجھیں یہ ہم پہ ایک فضل ہو گیا ہے کہ اس کی بادشاہت میں ہم حصہ دار بن گئے کسی بھی طرح سے نسیم بھائی ہم اس کی بادشاہت کا حصہ بن گئے ہیں ہمیں کچھ کرنے کی توفیق مل گئی ہے کچھ کرنے کا فضل مل گیا ہے یہ بڑی برکت بات ہے یہ کسی کئیوں پہ فضل ہی نہیں ہوتا ان کا ذہن ہی نہیں کھلتا ان کی عقلیں بند ہو گئی ہے اور وہ مسیحیت کی بادشاہت خدا کی بادشاہت مسیح کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں اس لیے ہمیں یہاں سے سیکھ ملتی ہے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس طرح سے اس عورت نے جس طرح سے اس بچے نے جو کچھ تھا خدا یسوع مسیح کو جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اس پر نچھاور کر دیا جو کچھ ضرورت پڑنے پر ہم خدا کی بادشاہت کے لیے کام کریں کندھے سے کندھا ملا کر چلیں جو کچھ ہمارے پاس ہے پھر جب ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے بیٹھیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ خدا ہمیں کس طرح سے برکتیں دیتا ہے کیونکہ جو روٹی وہاں انہیں کھلائی گئی بیابان میں ان کو پھر بھوک لگی یا نہیں لگی تو پھر بھی انہیں پیاس نہیں وہ وقتی کھا کر روٹی چلے گئے لیکن ہمارے پاس وہ روٹی ہے جو کوئی کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو وہ روٹی کون ہے وہ روٹی کون ہے جی مسیح یسوع ہے یوحنا 6 باب کی 35 آیت پڑھیے گا ذرا آپ بھائی یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جیسس تو ہمارے پاس وہ اصل روٹی ہے اس روٹی جیسا فکر نہیں کرنی ان چیزوں کی ہم نے فکر نہیں کری کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے کیا بنے گا ہم نے صرف سسٹم پر کھڑے رہنا ہے ہم نے صرف ایمان پر کھڑے رہنا ہے کہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا سسٹم کا خدا وعدوں کا سچا خدا وہ جو کچھ کہتا ہے وہ ضرور کرتا ہے وہ ہماری فکریں خود کرے گا ہم نے ہمیشہ کی روٹی پر جو یسوع ہے اسے کھانا ہے اور اسے لینا ہے جی انہوں نے اس سے کہا اے خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا آمین خدا ان کے زندہ کلام میں ہم نے پڑھا ہے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 6 باب کی 35ویں آیت ہمیں بتاتی ہے یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی سارے میرے ساتھ کہیں زندگی کی روٹی یسوع ہے یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا ماننے والے ہم یسوع کے ہوں پیروکار ہم یسوع کے ہوں خالق اور مالک کے ہم ساتھ رہنے والے ہوں یا وہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہم پیاسے ہوں بھوکے ہوں ایسا ہو اس کے لیے خدا کا بندہ داؤد نبی کہتا ہے میں بچہ تھا اب بوڑھا ہوں میرے ساتھ رہے کیا کہتا ہے میں بچہ تھا اب بوڑھا ہوں لیکن راست باز کی اولاد کو میں نے کبھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا آمین میں نے راست باز کی اولاد کو کنڈیشن کیا ہے راست باز نسیم بھائی کنڈیشن کیا ہے راست باز کی کلام کہتا ہے میں نے اولاد کو کبھی بھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا پھر دوسری آیت لکھا ہے کلام میں کہ وہ راستوں سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا آمین لیکن کنڈیشن راست باز ہربرٹ بھائی کنڈیشن کیا ہے راست باز کنڈیشن راست باز ہے اسی راست باز کو چھڑ دینے ہاں لیکن وہ خدا دا تے وعدہ ہے میں تمہیں ہر شے دیاں گا کدی تو تمہیں پریشان نہیں ہونے دیں گا لیکن اصل بات ہم پوری آیت کو پڑھتے نہیں لکھا میں نے راست باز کی اولاد کو کبھی بھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا کہہ رہا میں بچہ تھا اب بوڑھا میرا یہ ایکسپیرینس ہے تجربہ ہے میں نے کبھی بھی راست باز کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا لیکن کنڈیشن ہے کہ وہ راست باز ہو خدا کے ساتھ چلنے والا ہو ایماندار ہو ترس کھانے والا ہو محبت اس کے اندر سے مسیح کی نظر آتی ہو کبھی بھی ٹکڑے نہیں مانگے گا اور نہ وہ کیونکہ ہمارا ایمان کس پر ہے
यीशु पर है, जो अब्राहम के लिए पत्थरों से भी औलाद पैदा, आमीन, जो नाम जिसके लिए लिखा है कि जहां नहीं बोता वहां से वो इकट्ठा करता है। बात ईमान की है, बात उसी पर नजर करने की है। जिस तरह शागिर्दों ने कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, वो ये भूल गए कि रोटियां कुछ नहीं, पावे कुछ नहीं। अरे यीशु तो साढ़े नाल है ना, हमें यीशु को हर वक्त क्या रखना है, अपने साथ रखना है, याद रखना है। यशवा से यही तो कहा गया था, ना तू दाएं मुड़ना और ना तू पैन में अपना सोनिया, ना तू इधर जाना है ना तू उधर जाना है, सीधा किधर जाना है, कलाम मसीह पर निगाहें रखनी है और तू फिर खूब कामयाब होगा। हम इधर भी जाते हैं, ऐ भी कर लिए, तो उधर भी जाने हैं, ऐ भी कर लिए, सारे काम असी कर लिए, दुनिया में भी कुछ कर लिए, तो फिर हम कहें जी किसी परेशानी में भी हम मुब्तला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा खुदा अदल और इंसाफ का खुदा है। वो आज कल बल्कि अव्वल तक यकसा है। हम अब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमेशा की जिंदगी देता है। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा। आमीन, सारे कहें आमीन, आमीन, आमीन। और मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। शागिर्दों को खुदा यीशु मसीह ने समझाया, सिखाया कि यीशु तुम्हारे साथ है, इस बात पर ईमान रखो, मैं तुम्हारे साथ। यीशु पर ईमान ले आओ। तुम्हारे पास कुछ नहीं लेकर यीशु तुम्हारे साथ है। हमारे पास कुछ भी ना हो, वक्त आता है जिंदगी में, कभी कभी ऐसी टाइम आता है, खुदा चेक करता है, देखता है कि मेरा बंदा कितना वफादार है, कितना मेरे साथ चलता है। इंसान है, कभी गिर जाता है, लेकिन ये हमेशा दामन यीशु का हमने नहीं छोड़ना, हर वक्त उसे रखना है कि यीशु तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। कुछ भी ना हो लेकिन तू मेरे साथ है। हमें तो कभी भी नहीं छोड़ता, वो संभालता, अपने लोगों को बरकत देता है। हमने इत्तेकाद ये रखना है, ईमान ये रखना है, भरोसा ये रखना है और इस ईमान पर खड़े रहना है कि खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है। उसने सलीब पर हमारे लिए जान दी है और वही हमेशा की ज़िंदगी है और वही रोटी है। जो कोई वो खाता है, जो कोई वो पीता है, वो कभी भी प्यासा और भूखा नहीं रह सकता। सो अमली रिक्वेस्ट है मेरी कि हम कलाम को बड़े गौर से, ध्यान से और कोशिश किया करें कि जो कलाम है हमारी ज़िंदगियों में से नज़र आता है, इसे प्रैक्टिकली करके देखा करें। ये करके तो देखें। मलाकी की किताब यही तो कहती है, मुझे आजमा कर देखें। क्या लिखा है जी? मुझे आजमा कर। हम आजमाते ही नहीं है नसीम भाई, हम आजमाते ही नहीं है। आजमा कर चैलेंज किया खुदा, अरे मुझे आजमा कर देखो। अच्छा बाजी, मुझे आजमा कर देखो। हमने कभी आजमाया नहीं। आजमा कर देखे कि मैं कैसा मेहरबान हूं। मैं आसमान के दरीचों को, क्या लिखा जी? आसमान के दरीचे खोल कर बरसाऊंगा। अरे रखने के लिए जगह नहीं होगी। हम ईमान ही नहीं रखते। असि आने इन्ना दे देगा तो साढ़े को छोटा जिहा घर रखांगे तो छड्डो पर जिन्ना कोई है नहीं बड़ा। नसीबे मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम ये कहते हैं कि छोटा जिहा घर रखांगे देना कुछ, तो जब वो देगा तो वो दरवाजे भी बड़े कर देगा, घर भी बड़े कर देगा। जिस ईमान पर खड़े रहे कि वो नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल देने वाला खुदा है। यही तो खुदाई है ना, यही तो मिरेकल्स है ना, यही तो मौजज़ात है ना। फिर किस चीज का? क्योंकि उसके काम अजीब है। अगर मेरे पास सारा कुछ ही हो तो मैं गवाही किस चीज की दूंगा कि मैंने मेहनत की थी, ठीक है, आ गया। मैंने यही तो गवाही देना है कि मैं एक दफा पस्त हो गया, लेकिन उस बस्ती की हालत में से मुझे उसने निकाला और फिर दुनिया की इंतहा तक इस्तेमाल किया। ये गवाही है। इसलिए वो अपनी गवाही के लिए कुछ चीजें होने देता है। हमें फिर उसमें हमें चेक करता है, देखता है कि बंदा कितना मेरे साथ वफादार है, कितना मेरे साथ ध्यानदार है। ये बच्चा खुदा उनसे प्यार करता था, ये औरत खुदा उनसे प्यार करती थी। जो शख्स भी खुदा उनसे प्यार करता है, जो भी यीशु को समझ गया है, जो भी यीशु से प्यार करता है, यीशु भी उसे कभी छोड़ता। आमीन। यीशु भी उसे कभी भी छोड़ता नहीं। सो मेरी हमारी रिक्वेस्ट है कि हम एक घर के अंदर मस्बा बनाएं, दुआ करें कि खुदा हम पे रहम करे, फजल करे,
हमें अपने साथ लेकर चलने वाला हो, क्योंकि हम हर लिहाज से कमज़ोर हैं, लेकिन हमारा खुदा ज़ोरवर खुदा है और वो हमारे साथ है। सो